Recording in progress. वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। क्रिप्टो वॉच के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष एपिसोड टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह की क्रिप्टो वॉच सीरीज का पार्ट है। क्रिप्टो जिसका फ्यूचर राहु के कुंभ राशि में 18 मई को जाने के बाद बहुत ब्राइट दिख रहा है, और वही हुआ जो मैंने पिछले क्रिप्टो वॉच के पहले एपिसोड के अंदर, जिसमें मैंने बोला था बिटकॉइन एक डिजिटल गोल्ड है, और बिटकॉइन तब 1,04,000 के आसपास था, और मैंने बोला था कि ये जल्दी ही अपना ऑल टाइम हाई छुएगा और 1,10,000 को पार करेगा। आज बिटकॉइन ने $1,11,000 का अपना मुकाम पार कर लिया। एग्जैक्ट वैल्यू आज के हाई की है $1,11,778, और इसने उसके बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया है, और करंट भाव 1,08,600 चल रहा है, और 1,07,400 का लो ये मार चुका है आज के दिन में। लेकिन डरने की बात नहीं है दोस्तों, ये बुलिश है, और अब मुझे लगता है आगे भी ये बुलिश रहेगा। अगला टेक्निकल टारगेट अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसको बुलिश फैक्टर कौन से हैं जो बिटकॉइन को भगा रहे हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है राहु का कुंभ राशि में जाना, क्योंकि राहु की कौन राशि है, राहु वहां जाके सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। राहु क्रिप्टो करेंसी आभासी दुनिया का मालिक है, शेयर बाजार और स्पेकुलेशन का देवता है। तो अगर अब आप ये मानोगे कि राहु का स्वर्णिम काल अगर शुरू हुआ है, तो अगले 18 महीने क्रिप्टो करेंसी की बूम बनी रहेगी। अदर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है कि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के दोनों प्रो क्रिप्टो माने जाते हैं, और क्रिप्टो का लीगलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये भी है कि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उसको भी बिटकॉइन रखनी चाहिए। बिटकॉइन हिट ऑल टाइम हाई, और इसका क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अंदर क्या है, बुल्स आर बैक, एंड हियर योर्स ट्रूली डॉक्टर अरुण सिंह। I'm a consultant physician, critical care specialist, and nephrologist. I'm a director, Center for Life, Jaipur. I passed out my MBBS and MD from SMS Medical College, Jaipur. Financial market, astrotechnical is my hobby, and we also conduct astrotechnical analysis and trading skill development course. Let's go. This is the first episode of Crypto Watch on my channel, Technical Talk with Dr. Singh. Bitcoin, digital gold and beyond, digital money, blockchain technology, and popular examples are the Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, and other stable coins. These are the educational video to the all investors who are interested in learning cryptocurrencies. Bitcoin is a digital gold because it stores the value. It is inflation proof, and institutional backing is with Bitcoin because BlackRock has a ETF, MicroStrategy, and uh, Tesla both have Bitcoins in their uh, corporate accounts. Limited supply. Only 21 million coin can be ever mined. So Bitcoin scarcity and post halving cycle create a long-term bullish outlook. What is this halving? Halving means कि if you are supposed to give if one Bitcoin is
generated after 100 crore calculation. Now the Bitcoin will be generated after halving 200 crore generation. So it is a more scarce and more costly to generate Bitcoin. And this create a long-term bullish output. Price potential of 25-26 would be exceeding 1 lakh in bull cycle, and it may go up to 2,50,000 in near future. This is Bitcoin chart on my Astro Technical Analysis and Trading Skill Development course. This is a monthly chart of Bitcoin. This shows classic uh, inverted head and shoulder breakout with the retesting, and now it is a clear cut 1,11,000, surpassed 1,11,000 at the time when we always posted this chart. तो बिटकॉइन का अभी जो हमें रीसेंट लग रहा है कि अगर इस ब्रेकआउट को अगर ये पार करेगा तो अगला टारगेट 140 से 150 के बीच का होना चाहिए. This is weekly chart. It is also showing the similar type of the uh, bullish momentum to the upside, and it is started from this zone between $7,000 and $8,000. Here, Bitcoin took a double bottom support. If anyone is interested in double top and double bottom support, he may refer to my video on how to trade double top and double bottom on my YouTube channel. This is the daily chart of Bitcoin. It is a very interesting. This is double bottom reversal from here, and this pattern is itself is a very bullish pattern. My student recognize this pattern. This is a very peculiar pattern which we taught in our astrotechnical analysis and trading skill course. Ethereum is a smart contract pioneer है. Smart contract क्या होते हैं? These are the self-executing contract with code-based term. DeFi and DApp पावर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एंड एप्लीकेशन होती है. इथेरियम 2.0 मोर स्केलेबल है और लोअर फीस है, इसलिए इथेरियम ब्रेस अ लॉट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो इथेरियम को यूज करती हैं. इथेरियम के बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के लिए तीन बेस है. वन बिटकॉइन बेस हो सकती है, या ईथर बेस हो सकती है, या इंडिपेंडेंट तीसरी अपनी सेपरेट हो सकती है. तो मेजोरिटी ऑफ जो न्यू कॉइन्स आते हैं वो ईथर बेस्ड होते हैं. इथेरियम बेस्ड चेन होती है और वो इस ईथर से लिंक होते हैं. इट इज अ मोर स्केलेबल है और लो फीस होती है. इथेरियम इज अ फाउंडेशन ऑफ वेब 3. स्पॉट ETF is expected already came in 2025 and boosting the price to the $8,000 to $10,000. अभी इथेरियम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग $1,000 के आसपास का इसने बॉटम मारा था. 12, ये जो लो है ये है करीबन 1400 के आसपास का, और वहां से इसने एक बहुत स्मार्ट रिकवरी दी है और अभी ये $2,600 के आसपास है. अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो ईथर का पहला टारगेट $4,000 और दूसरा टारगेट जो ये ऑल टाइम हाई है 4,800, इसके पास पहुंचने का लग रहा है. ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो को रिवोल्यूशनाइज कर दिया. कैसे कर दिया इसने? क्योंकि $10 ट्रिलियन अभी तक उसके अंडर आ चुकी है. ये स्पॉट बिटकॉइन को ETF में करते हैं. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अगर आपने स्पॉट बिटकॉइन ETF खरीदा है तो उस पैसे से उनको बिटकॉइन खरीदना कंपलसरी है. दूसरे ETF वो होते हैं जो आप जो भी ETF में पैसा लगाते हो उससे वो बिटकॉइन का फ्यूचर खरीदते हैं, वो एक्चुअल बिटकॉइन नहीं खरीदते हैं. लेकिन स्पॉट बिटकॉइन के चक्कर में अगर
जो स्पॉट ईटीएफ है, उनको अगर बाजार से बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा तो बिटकॉइन की जो डिमांड है वो एक्सीड करेगी सप्लाई से, इसलिए बिटकॉइन का बुलिश आउटलुक है। आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट के अंदर बिटकॉइन होल्डिंग कितनी है? 2.5 लाख बिटकॉइन है उनके पास। 2024 में ईटीएफ लॉन्च का ईयर था और मोस्ट सक्सेसफुल ईटीएफ लॉन्च इन हिस्ट्री है। ब्लैक रॉक की एंट्री ने लेजिटिमाइज कर दिया क्रिप्टो एज ए सीरियस असेट क्लास, और इनकी इथीरियम ईटीएफ ने दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है। इम्पैक्ट ऑफ ईटीएफ ऑन प्राइस। इंस्टीट्यूशनल एडेप्शन, अगर पेंशन फंड है, बैंक है, अब वो लीगली इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर वाया ईटीएफ। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और रेगुलेटरी क्लियरिटी बाजार के अंदर रहती है। ईटीएफ सिग्नल एक्सेप्टेंस। ईटीएफ के बिटकॉइन और ईथर के ईटीएफ आने से क्या हुआ कि हमको ये पता पड़ गया कि फाइनेंशियल रेगुलेटर अब क्रिप्टो करेंसीज को उतनी बुरी नजर से नहीं देख रहा। दो इंडिया में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी है, वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लॉटरी का टिकट और सट्टे की तरह देखती है, और 30% टैक्स है उसके अंदर, और उसके ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो तो टैक्स टीडीएस भी कटता है। सप्लाई शॉक, ईटीएफ रिक्वायर एक्चुअल क्रिप्टो एंड रिड्यूस अवेलेबल सप्लाई। अगर जो स्पॉट वाले हैं उनको चाहिए होता है, जो फ्यूचर बेस्ड ईटीएफ है उनको नहीं चाहिए होता है। डोज कॉइन एंड शिबा इनू, दो दो मोस्ट पॉपुलर मीम कॉइन है, और इनको पॉपुलर करने के अंदर इस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है, और ये है एलन मस्क, टेस्ला के मालिक। और इनको इनका जो डॉग है उसका नाम इन्होंने शिबा रखा था, क्योंकि ये शिबा इनू ब्रीड का कुत्ता है। और डॉज कॉइन की ओरिजिनली क्रिएट एज ए जोक इन 2013, championed by Elon Musk as People's Crypto, surged 145% after Trump 2024 election victory. Shiba Inu, SHIB, self-proclaimed Dogecoin killer है, gain popularity through the community momentum. शिबा इनू की सबसे खास बात क्या है कि जो शिबा इनू का जो सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है। उस उतने पावरफुल सिस्टम के अंदर जो कम्युनिटी सपोर्ट है, शिबा का अपना एक नेटवर्क है, उनके दो और कॉइन भी हैं, एक कॉइन लीश है, दूसरा कॉइन बोन है, जो शिब के साथ में इंटरचेंजेबल है। तो ये जो पूरा शिबेरियम करके उनका एक अपना पूरा सिस्टम है, तो ये सब चीजें मिलके शिबा इनू को बड़ा पॉपुलर कॉइन बनाती है। ब्लैक रॉक, $10 ट्रिलियन, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं डॉज कॉइन के चार्ट पे। बहुत बहुत पावरफुल, जितने भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, सारे बुलिश हैं। जिस किसी में अगर मेरे को बेरिश मोमेंटम दिखेगा तो वो आपको मैं बीच में मार्क कर दूंगा। इस समय $0.24 के ऊपर है, और इसका जो रिसेंट टारगेट है वो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 0.48 है। मतलब यहाँ से 100% अप्रिशिएट होने की इसकी संभावना है। शिव, ये 4 टाइम 015 चल रहा है इस समय, और ये 0.4 टाइम 01097, या 1100 मान लें अपन इसको। और इस जगह से इसने सपोर्ट लिया है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस जगह से इसने एक बार, दो बार, तीन बार, थर्ड टाइम इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर मैं इसको जोन में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे चौथी या पांचवी बार इसने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, और ये यहाँ से ये पूरा रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल देगा तो पहला टारगेट यहाँ 11 है, यहाँ पे 4 टाइम 0 33,
और 33 के बाद 4 टाइम 0 45। और आज अगर अपन 15 को माने और उसको 45 माने तो 15 से 3 टाइम्स होने की पूरी संभावना इसकी नियर फ्यूचर के अंदर है। ये हमारा एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स है। हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर टेक्निकल और एस्ट्रो टेक्निकल का क्या महत्व है ये सिखाते हैं। क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट है वो तो आप टेक्निकल एनालिसिस से एनालाइज करके डिसाइड करते हो, और जो कब मूवमेंट आएगा ये आपको टाइम्स के एनालिसिस से पता पड़ता है। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी आपको सीखनी पड़ती है। एंड ट्रेडिंग स्किल इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, जो इन दोनों से भी अलग है। मास्क एलन मस्क एंड ट्रम्प का इफेक्ट आ रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करते हैं ये मल्टीपल। जो एक्स पे इनका ट्विटर, जो एक पुराना ट्विटर था, ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसीज के भाव शुरू से ही बढ़ते और कम होते रहे। पॉलिसी प्रपोजल जो है ट्रम्प के प्रो क्रिप्टो स्टांस जो है वो मार्केट में ऑप्टिमिज्म देता है। वॉलिटिलिटी, सेलिब्रिटी ड्रिवन प्राइस एक्शंस बाजार में रहता है, और मार्केट सर्च कर रहा है। मीम कॉइन का मार्केट ग्रो कर रहा है $20 बिलियन से 118 से $120 बिलियन तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये मस्क कैन ट्रम्प स्टॉर्म माना जा सकता है। अदर क्रिप्टो करेंसीज अल्टरनेट कॉइन्स क्या है? सलोना। सोलाना सोल जो है ये अल्ट्रा फास्ट ट्रांजैक्शन का करता है, लो फीस है, स्ट्रॉन्ग डिफाई को इकोसिस्टम है, और चेन लिंक है जिसको लिंक के नाम से जानते हैं। इट इज अनदर डिसेंट्रलाइज ऑरेकल है। कनेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू द रियल वर्ल्ड डाटा एंड पार्टनर करता है स्विफ्ट के अंदर। और पॉलीगॉन, ये मैटिक का पॉलीगॉन मैटिक जो है ये इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन है, यूज बाय मेजर ब्रांड एंड रिड्यूस द गैस फी। व्हाट इज गैस फी? जब अपन क्रिप्टोज को ट्रांजैक्ट करते हैं तो गैस फी लगती है। ये बेसिकली ट्रांजैक्शन फीस है या ब्रोकरेज समझ लें। तो ये अदर इम्पोर्टेंट कॉइन है जिनको अपने को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। क्रिप्टो सिक्योरिटी एसेंशियल्स के सेल्फ कस्टडी होती है। नॉट योर की, नॉट योर कॉइन। अगर आप अपनी नॉन कस्टोडियल वैलेट यूज करना चाहिए। हार्डवेयर वैलेट होते हैं जैसे लेजर का होता है, ट्रेजोर का होता है, सेफपॉल का होता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होते हैं। 2FA ऑथेंटिकेशन होता है। यूज गूगल ऑथेंटिकेटर रादर देन SMS। और स्कैम अवेयरनेस, आपको इसके बारे में हमेशा अपने आप को बढ़ा के रखनी पड़ती है। कॉमन क्रिप्टो थ्रेट्स के थर्ड टाइम होते हैं फिशिंग स्कैम। फेक वेबसाइट होती है, वैलेट आ जाता है फेक उसके अंदर। आप हमेशा यूआरएल चेक करें, हमेशा अपना बुकमार्क करके वेबसाइट्स पे रहें। ड्रग पुल्स, स्कैम प्रोजेक्ट दैट वैनिश विद द फंड। रिसर्च डीपली एंड अवॉइड फोमो। एक्सचेंज हैक्स, प्लेटफॉर्म दैट गेट कंप्रोमाइज। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर वजीरेक्स का प्लेटफॉर्म कंप्रोमाइज हो गया और उसके अंदर से बहुत बड़ी मात्रा में क्रिप्टो चोरी हो गई, और अल्टीमेटली सफरर कौन रहा? जो भी लोग वजीरेक्स में काम कर रहे थे या वजीरेक्स में करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था। यूज कोल्ड स्टोरेज फॉर द लार्ज होल्डिंग। अगर आपके पास बहुत सारी बिटकॉइंस है तो आप कोल्ड स्टोरेज अपने पास में रखें, वैलेट्स लें, उसके अंदर करें। फेक गिव अवे सोशल मीडिया पे होता है। अगर आप देते हैं, नो वन गिव्स फ्री मनी। कोई आपको कह रहा है कि नहीं मैं आपको क्रिप्टो दूंगा, इतने दूंगा, आपका आपका मेरे को वो आईडी दे दो या आपका पेमेंट गेटवे बता दो, तो वो गलत है। पेमेंट एंड मनी ट्रांसफर, रिटेल पेमेंट्स के अंदर पेपाल, शॉपिफाई एंड वीजा क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट करने लगी है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, सेंड $1,000 internationally in a minute instead of the day with lower fees. B2B transaction, companies using stablecoin for the faster and cheaper international business payment. स्टेबल कॉइन कौन से होते हैं? स्टेबल कॉइन वो कॉइन होते हैं जो डॉलर की प्राइस से लिंक है।
तो वो जो जब डॉलर की जो भी प्राइस होगी उस प्राइस का एक प्राइस रहेगा, तो बेसिकली क्रिप्टो वर्ल्ड का वो क्रिप्टो डॉलर है। इस तरह के स्टेबल कॉइन्स होते हैं। डिफाई बैंकिंग सिस्टम विदाउट बैंक्स। ट्रेडिशनल फाइनेंस लिमिटेशन क्या है? बैंक कंट्रोल एसेट्स, चार्ज हाई फीस एंड एक्सक्लूड बिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। डीफी इनोवेशन क्या करता है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है ये। डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल इनेबल लैंडिंग, बोरोइंग एंड ट्रेडिंग विदाउट इंटरमीडिएट। फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एनीवन विद इंटरनेट एक्सेस कैन पार्टिसिपेट इन ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस। व्हाट इज एनएफटी? एनएफटी एंड डिजिटल ओनरशिप क्या है? एनएफटी इज द डिजिटल आर्ट है। यूनिक टोकन रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ ए डिजिटल आर्ट वर्क। डिजिटल आर्ट है लेकिन आप उसको ओन करते हो, आप उसको बेच सकते हो। इनकी एक अलग से ही जैसे सौदे में पुरानी आर्ट्स की नीलामी होते हैं, ऐसे इनकी भी एनएफटीज की भी नीलामी होने लगी है। और इवेंट के टिकट है। प्रिवेंट स्कैल्पिंग वाइल enabling artist royalties. Gaming assets है, own and trade in game item across the different platform. Real estate, tokenized property ownership of the fractional investing है। जैसे सपोज करो एक बड़ा प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर हम सब छोटे छोटे टोकन के अंदर हम ले रहे हैं। तो अगर मान लो वो सपोज करो 1,000 बिटकॉइन का की प्रॉपर्टी है, तो आप उसके अंदर 0.5 बिटकॉइन भी ले सकते हो, 0.1 बिटकॉइन का भी आपको ओनरशिप मिल सकती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कैसे करता है ये है कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशंस आर मेट। कोड बेस होते हैं, टर्म्स रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ट्रांसपेरेंट होते हैं, विजिबल टू द ऑल पार्टिसिपेंट होते हैं, और डिसेंट्रलाइज होते हैं। नोबडी कंट्रोल दिस कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पावर most of the Web3, uh, DeFi and DOA and DApp and games, they enable trustless transaction between related parties. क्रिप्टो मार्केट का आउटलुक क्या लग रहा है आपको? क्रिप्टो मार्केट का आउटलुक मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। और बिटकॉइन और अगर ईथर का मार्केट देखेंगे अपन, तो ये जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावना है। स्टेबल कॉइन जो है, जैसे सबसे कॉमन है यूएसडीटी। यूएसडीटी इज ए टीथर कहलाता है ये। और ये टीथर है, ये डॉलर से लिंक है और इसको डॉलर की प्राइस के साथ में करता है। यूएसडीसी है, डाई है, बीयूएसडी। स्टेबल कॉइन कांस्टेंट वैल्यू होती है, पैक्स टू द यूएस डॉलर होते हैं। दे इनेबल ट्रेडिंग, पेमेंट एंड डिफी विदाउट द वॉलेटिलिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। रियल वर्ल्ड क्रिप्टो एप्लीकेशन क्या है? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम प्रोटेक्ट द प्राइवेसी व्हाइल कंफर्मिंग द आइडेंटिटी। वोटिंग सिस्टम होता है, सिक्योर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स बना सकते हैं इससे आप। और सप्लाई चेन ट्रैक कर सकते हो आप उसके अंदर। ऑथेंटिसिटी ऑफ लग्जरी गुड एंड इंश्योर फूड सेफ्टी। अगर मान लो मैंने एक रोलेक्स की वॉच खरीदी, तो मेरे को उसके साथ जो क्रिप्टो सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो मुझे ये बताएगा, ब्लॉकचेन पे होगा, तो कि यार ये मेरे से पहले किसने ली, कब ली, कहाँ ली, कंपनी से कब निकली, कितनी तारीख को बनी, वो सब उस ब्लॉकचेन में लिखा हुआ। हेल्थ केयर रिकॉर्ड इसी तरह प्राइवेट स्टोरेज और मेडिकल डाटा होना चाहिए कि कब गए थे डॉक्टर के पास, कितना आपका बीपी था, कितना नहीं। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी गवर्नेंस, टोकन होल्डर वोट फॉर द डिसीजन इंस्टेड ऑफ द centralized leadership. Smart contract operation, DAO run on a code that automatically execute approved decision. Global collaboration होना चाहिए, members from the all across the world participate equally to the governance. तो अपन इसके बाद एंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे आ गए। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो क्या है? फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो बहुत ज्यादा ब्राइट है। राहु का साल है, 1.5 साल तक के लिए राहु अपनी कुंभ राशि में रहेगा। बहुत चांसेस अच्छे हैं कि एक बार एक मैसिव बुल रन इन क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगा। एआई इंटीग्रेशन अगर अपन क्रिप्टो के साथ कंबाइन करते हैं डाटा शेयरिंग एंड ऑटोनोमस सिस्टम में, तो यह उसको बहुत नई ऊंचाइयों पे लेगा। रेगुलेटरी क्लियरिटी धीरे धीरे आने लगी है।
जैसे-जैसे ईटीएफ एंड अदर अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अगर इसमें रेगुलेशन अगर इम्प्रूव हो जाते हैं तो बाकी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो को लीगल स्टेटस मिल जाएगा। सीबीडीसी डेवलपमेंट क्या है? सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल करेंसी। जैसे इंडिया के अंदर डिजिटल रुपी लॉन्च हो रहा है, अफ्रीका के अंदर डिजिटल करेंसीज जो है डिजिटल अफ्रीकन गोल्ड के रूप में उन्होंने लॉन्च कर रखी है। ऐसे बहुत सारे कंट्रियों ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। वेब3 एक्सपेंशन, यूजर ऑन इंटरनेट रिवोल्यूशन ऑफ डिजिटल इंटरेक्शन। इसी के साथ दोस्तों क्रिप्टो वॉच का ये लर्निंग एपिसोड कि कौन सा कॉइन होता है, कैसे होता है, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर क्या है, क्रिप्टो में हमें इन्वेस्ट करना है या चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्रिप्टो के जो चार्ट होते हैं क्या वो बाकी चार्टों की तरह ही टेक्निकल एनालिसिस उनमें काम करता है। तो ये सब चीजें आज मैंने आपको हमारे इस क्रिप्टो वॉच के अंदर आपको बताई। अगर किसी को क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है तो इस स्पेस को हमारे चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ आपको आने वाला महीना क्रिप्टो के हिसाब से बहुत अच्छा रहे। इसे आज शुभ रात्रि। धन्यवाद।